Good morning, students. In the today's lecture, we will discuss the numericals on interference. First question is, in Young's experiment, the width of the fringes obtained with the light of wavelength 6000 angstrom is 2 millimeter. Right? When we are using this width of fringes is 2 millimeter, if we are using a wavelength of 6000 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 raised to the power minus 10 meter. So it becomes 6000 into 10 raised to the power minus 10 meter. Question is, what will be the fringe width if the entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index having the value 1.33. राइट स्टूडेंट, तो अब हमें ये मालूम है दिस इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. व्हाट इज बीटा इन एयर? एयर में आपको पता है दिस इज, एंड यू कैन राइट दिस फॉर्मूला एज बीटा एज 1 upon mu into capital D divided by small d because these distances remain same. Now when it is immersed in water, so beta dash become 1 upon mu dash into d divided by small d. So divide these two equations. On dividing you will get second divided by 1. So you will get beta dash divided by beta is equal to 1 upon mu dash divided by 1 upon mu. So ये cancel out हो जाएंगे. This become mu divided by mu dash. So in beta dash becomes mu into beta. This is beta dash is equal to mu into beta divided by mu dash. अब mu एयर का कितना होता है 1 और ये कितना है 2 मिलीमीटर. ठीक, और ये कितना है 1.33. तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना आ जाएगा? दिस कम्स टू बी 2 डिवाइड बाय 1.33. दिस इज 1.5 millimeter. So this is the fringe width. Now in the next question is a yellow light. This is yellow light of wavelength 6000 angstrom produces fringes of width 0.8 millimeter in Young's double slit experiment. What will be the fringe width if light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slits is doubled? Separation between the slits is doubled means D is doubled. Right, D को क्या कर दिया आपने? डबल. तो अब आपके पास पहले fringe width कितनी आएगी? बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. कब वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं? दिस इज लैम्डा 1 एंड दिस इज लैम्डा 1 इज 6000 एंगस्ट्रॉम. 6000 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10. कैपिटल डी इज सेम और आपके पास ये मान लेते हैं डी. और फ्रिंज विड्थ कितनी है? 0.8 मिलीमीटर. राइट स्टूडेंट, दिस इज 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 और माइनस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 7. अब हमसे पूछा है कि आप if what will be the fringe width if light source is replaced? New fringe width क्या होगी? If light source is replaced by lambda 2 is 7500 angstrom. ठीक है, और D सेम रहेगा और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया हमने? D dash remains D by this is double. It is double. तो आपको बीटा 2 निकालना है. बीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. दिस इज 7500 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 डी डिवाइड बाय 2d. तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे? बीटा 2 और बीटा 1 इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? डिवाइड. फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट. तो बीटा 2 डिवाइड बाय 0.8 मिलीमीटर, तो हमारा आंसर मिलीमीटर में आ जाएगा. दिस इज डी से डी कट जाएगा. दिस इज 7500 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10. इसको अगर हम इसी में रखें 6000 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10 इंटू दिस इज डी डिवाइड बाई 2. ये आपका 2d. दिस इज डी डिवाइड बाई डी. ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आप बीटा 2 की क्या करेंगे? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज सिंपली अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. आई थिंक यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ ऑल्सो. एंड फ्रॉम हेयर द फ्रिंज विड्थ कम्स आउट टू बी 0.5 millimeter. These are very important questions and asked in the exam also. Now after this I have one more question that is of NCERT and it is very important question.
This is a beam of light consists of two wavelengths, 650 nanometer and 520 nanometer, is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maximum for the wavelength of 650 nanometer. तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज. डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. तो इसको सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस ऑफ, what is the condition of distance of third bright fringe from central maximum. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? दिस इज फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज. द कंडीशन इज फॉर थर्ड ब्राइट फ्रिंज path difference must be equal to n lambda. This means xt by d is equal to n into lambda. तो n इक्वल टू क्या पुट करोगे आप? 3. तो x कितना आ जाएगा? दिस इज 3 लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. कौन सी वेवलेंथ के लिए करना है? 650 नैनोमीटर के लिए. तो 3 इंटू 650, कैपिटल डी आपको ज़रूरत ही नहीं है. दिस इज थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम. तो आपके पास डी कितना दिया हुआ है? दिस इज 120 centimeter and small d is 2 millimeter. Used to obtain this, capital D is given to you. Capital D is 120 centimeter and the small d is, this is equal to 2 millimeter. तो आपके पास ये x3 जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 650 नैनोमीटर 10 raised to the power -9, 120 into 10 raised to the power -2, 2 into 10 raised to the power -3. तो यहाँ से ये आपके पास x आ जाएगा 1.17 millimeter. This is the position of third bright fringe from the central maximum. Now, after this we have what is the least distance from the central maxima where the bright fringe is due to both the wavelengths coincide. पहले तो हम बताएंगे कि कौन सी. देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, आपकी ब्राइट फ्रिंजेस दोनों की वेवलेंथ अलग है. तो अगर इसकी nth ब्राइट फ्रिंज है तो इसकी कौन सी होगी? n+1 1th ब्राइट फ्रिंज. ये कोइंसाइड करेंगी. तो अब आपकी बोथ द फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ wavelengths the bright fringes coincide if fringes coincide, यानी उनका x डिस्टेंस कितना हो जाए? सेम. x is equal to, this is n1 into beta 1 must be equal to n2 into beta 2. अब दोनों, क्योंकि ये क्या है? n1 into lambda 1 into d by d, this is equal to n2 into lambda 2 into d divide by d. अब ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज n1 into lambda 1 is equal to n2 into lambda 2. लेकिन अब ये देखो, एक वेवलेंथ है आपकी 650 और दूसरी कौन सी है? 520 नैनोमीटर. तो इसका n लैम्डा और इसका n+1 लैम्डा 2 आपका कोइंसाइड करेगा. तो हम इसको n1 ले लेते हैं और ये n1+1 ले लेते हैं. तो n1 इंटू दिस इज 650 क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, n1+1 इंटू 520 नैनोमीटर. ये आपका कैंसिल आउट होके यहाँ से n1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी. दिस कम्स आउट टू बी 65n1 इज इक्वल टू 52n1 प्लस 52. तो यहाँ से ये कितना आ गया? 7. दिस कम्स आउट टू बी 65. दिस इज 13n1 इज इक्वल टू 52. तो n1 कितना आ गया? 4th. तो ये यानी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज कौन सी वेवलेंथ की? 650 की. और इसकी कौन सी फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज आपकी क्या करेगी? कोइंसाइड. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ कोइंसाइड. तो लीस्ट डिस्टेंस किसका होगा? दिस 650 वाले का. तो x इज इक्वल टू n1 इंटू लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. तो अब n1 की वैल्यू कितनी आई? 4. वेवलेंथ आप यूज़ कर लेंगे 650 इंटू 10 raised to the power -9. डी की वैल्यू आपके पास पता है 120 इंटू 10 raised to the power -2 और ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 raised to the power -3. तो x की वैल्यू आएगी 1.56 millimeter. So this is also very important question. Now the next question is
In a double slit experiment, the angular width fringe is found to be 0.2 degree on a screen. Angular width जो बेटा आपकी फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी एंगुलर विड्थ भी ज़्यादा होगी. अगर ये कोई फ्रिंज विड्थ है, ये आपकी मान लेते हैं ये ब्राइट फ्रिंज है, ठीक. अगर ब्राइट फ्रिंज की विड्थ बढ़ा दें तो उसकी एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. तो हम ये कह सकते हैं थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विड्थ. सो इन अ डबल स्लिट experiment, the angular width of fringe is found to be 0.2 angstrom in a screen placed 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width if the entire apparatus is immersed in water? तो theta is this, तो theta 1 मान लेते हैं, this is equal to beta 1, और theta 2 is, this is in air and this is in water, तो this is equal to beta 2. तो ये हो गया आपके पास lambda 1 into d by d, और ये हो गया lambda 2 into d by d. ये आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, राइट स्टूडेंट. तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. अगर आपको याद हो तो हमने इसका फॉर्मूला क्या था, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 एंड दिस इज इक्वल टू सी बाय वी, एंड यू कैन राइट म्यू 1 इंटू लैम्डा 1, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा 2. ये कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. अब थीटा 1 डिवाइड बाई म्यू इज इक्वल टू थीटा 2. थीटा 1 कितना है 0.2 डिग्री और ये कितना है 1.33. तो आपके पास थीटा 2 कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0.15 डिग्री. I think it is clear to all of you. Now the next question is, what is the effect on the interference fringes in Young's double slit experiment due to each of the following operation? First, the screen is moved away from the plane of the slit. Screen is, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी डिवाइड बाय स्मॉल डी. फर्स्ट आपके पास ये है. तो अगर आपका स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, ये दो स्लिट हैं S1 एंड S2 और ये स्क्रीन है. स्क्रीन अगर अवे मूव कर रही है तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, इंक्रीज. दिस मीन्स डी इंक्रीजेस, देयरफॉर बीटा आल्सो इंक्रीजेस. Second, the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of shorter wavelength. अगर लैम्डा कम हुई, अगर लैम्डा क्या हुई, डिक्रीज, तो बीटा भी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि आपका बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. नाउ द विड्थ ऑफ स्लिट इज इंक्रीज. स्टूडेंट इसके लिए एक कंडीशन है, विड्थ ऑफ स्लिट इज इंक्रीज के लिए आपके पास यहाँ पर आपकी कंडीशन होती है, ये आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख सकते हो. दिस इज द सोर्स एस और ये दोनों स्लिट्स हैं S1 एंड S2, ठीक. और हम ये मान के चलते हैं दिस इज द विड्थ ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, और कैपिटल S इज द सेपरेशन बिटवीन देम. दिस इज द विड्थ ऑफ द सोर्स एंड कैपिटल S इज द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट्स. अब क्वेश्चन में दिया है what will be the effect if the width of slit is increased. अगर ये आप width of slit increase करेंगे, अगर width of slit increase करेंगे तो आपकी इंटरफेरेंस की कंडीशन एक ही होती है, S अपॉन कैपिटल S मस्ट बी लेस देन इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी क्या है, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन देम, राइट. अगर ये स्मॉल एस आप इंक्रीज करते हो तो ये फैक्टर आपका कंडीशन, स्मॉल एस इंक्रीज करने का मतलब क्या है, सोर्स की आपने स्लिट विड्थ इंक्रीज की या इनकी विड्थ इंक्रीज की, तो इट इज़ सपोज टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज. तो जिससे आपका इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाएगा, डिसअपियर. इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, डिसअपियर, एंड यू विल नॉट गेट द इंटरफेरेंस. ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन ट्राई more question on interference by yourself. Thank you and have a nice day.